Today I conduct chapter number 9 in grade 5, subject EVS. Chapter number 9 name is land, and this is our part 3. Part 3 of chapter 9. In the first part, I had explained you about the land defined and land's components and uses. And in the second part of the same chapter, I explained you about the soil defined, soil types, and their types are divided into two parts. First basis of color and second basis of its components. Now, today in this video, I explained some important points which are in your textbook. So today's point are living components. लिविंग कंपोनेंट्स, ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75. So what's the meaning of living components? Living components means leaves, feathers, living parts. Which one is living parts? Organism are seen is called the living components. जो भी feathers, birds के feathers होते हैं, छोटे छोटे जो insects होते हैं, which are seen, जो हम देख सकते हैं, is called the living components. Now my second topic is non-living components. Okay, what's the meaning of non-living components? As you know, कि living means जो सांस लेता हो. Okay, so in this category, I give the example of clay, mud, stone, rock, etc. जो सांस नहीं लेता है, जैसे it's not a living, जो सांस नहीं लेता, breath नहीं लेता. So in the living components, now which one in the insects and living organism which are the seen. And non-living यानी कि जो सांस नहीं लेता हो, it's come into in this category, stones, rocks, mud, etc. So now I will explain you about biotic components and abiotic components. They both are the soil components. Okay. So students, look at the blackboard. Here I write to components of soil. Components means जो soil का एक पार्ट होता है जो soil को यूजफुल बनाता है. Okay, so then the components soil, I give information about biotic components and abiotic components. So students, look at the blackboard. Here I write to my next topic. My next topic is components of soil, which is on your page number 75. There are one box is there. Heading is biotic components and abiotic components. इसमें आपको biotic components के बारे में उनकी चीजें लिखनी है कि biotic components में कौन-कौन सी चीजें होती हैं. Which things are called the biotic components and abiotic components. So here I write to microorganisms. It is जो छोटे वाले कीड़े, okay, जो microorganism से माइक्रो से पता चलते हैं. Second, excreta of animals. It means animals का जो shit बोल सकते हैं, जो गंद बोल सकते हैं, वो. Third, remains of dead organism. जो मरे हुए animals होते हैं या मरी हुई कोई भी living things होती हैं, उनके जो रिमेन्स बच जाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो कंपोनेंट्स बन जाता है सॉइल का. दैट ऑल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द बायोटिक. एंड द रेस्ट ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस बायोटिक कंपोनेंट्स इज द फेदर्स ऑफ बर्ड्स एंड ऑल लीव्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स को हम सिंपल लैंग्वेज में लिविंग कंपोनेंट्स भी बुला सकते हैं.
which I'm already today explained you. Okay, now second is abiotic components. It means non-living components. Non-living organism को abiotic components भी बुला सकते हैं. So first I'm here to stone means पत्थर, sand यानी रेती, mud and silt यानी कि कीचड़. mud यानी कि वो जो होती है ना, कीचड़ ही बोल सकते हैं, वो चिक्की मिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं. ओके, एंड हियर आर मोर एग्जांपल इज रॉक्स, जो ऑलरेडी मैं नॉन लिविंग थिंग्स में बता चुकी हूँ. सो हियर आई अंडरस्टूड एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. ये सब कंपोनेंट्स सॉइल के लिए बहुत जरूरी है. दे आर यूजफुल फॉर द सॉइल. Now I explained the types of soil. In the previous video I had already explained you three types of soil. First sandy soil, second clay soil, and third is alluvial soil. But soil have a many different types of here. So now I explain you two more types for the soil. Okay. So students, look at the blackboard. Here I write to silt. Silt is the type of soil. Okay, so my first point of silt is a sediment material with an intermediate size between sand and clay. So in the previous video I already explained you about the sand soil and clay soil. So ये जो silt soil है, ये sand soil और clay soil का क्या है, बीच का मिक्सचर है. Okay, second carried by water during flood. फ्लोड आपने देखा है, फ्लोड यानी कि जैसे सुनामी आती है पानी वाली, तो जैसे फ्लोड ना ऐसे आता है, और जो भी है ना नदी का किनारा होता है, ओशन का कोई भी किनारा हो, उसके सामने अपने साथ वो कुछ मिट्टी लेकर आता है. ऐसी वाली मिट्टी को बुलाया जाता है सिल्ट. इन द नॉर्मल लैंग्वेज को बोला जाए सिल्ट, इट मीन्स कीचड़. सिल्ट मीन्स कीचड़, जहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो गया हो, और वहां पर पानी जमा होते और फिर पानी जब ड्रेन हो जाए, आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो वहां पर जो है ना चीज रह जाती है जिसको हम कीचड़ बोलते हैं, इज कॉल्ड द सिल्ट सॉइल. उसको क्या बुलाया जाता है, सिल्ट सॉइल. नेक्स्ट, व्हेन सिल्ट इज ड्राई, जब सिल्ट वाली मिट्टी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, वेट हो जाती है, वेट मीन्स गीली हो जाती है, तब हम उसमें से क्या कर सकते हैं. ड्यू टू इट्स फिटनेस, फाइनेस, वेट, वेट मीन्स गीली. जब सिल्ट गीली हो जाती है, इट बिकम्स अ स्मूथ मड. वो मड यानी कि चिक्की मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, स्मूथ वाली चिक्की मिट्टी बन जाती है. That you can form easily into balls or other shapes in your hand. आप उसको अपने हाथ से उसके गोले बनाकर, बॉल्स बनाकर, कोई भी शेप बनाकर आप उसके साथ खेल सकते हो. आपने देखा होगा जब भी आप कभी किसी बीच में जाते हो इन बॉम्बे या बहुत सारे बीचेस जो भी हैं, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो मोस्ट ऑफ आप छोटे बच्चे वहाँ पर एक महल बनाते हो, पैलेस बनाते हो, उसमें हार डालते हो, तो वो जो मिट्टी आप यूज करते हो इज सब मड. वो क्या है, मड. और मड वाली मिट्टी कहाँ से, मड सॉइल कहाँ से आया, सिल्ट सॉइल में से. आप पानी का जब वेस आती है, वो यहाँ पर वेस बीच के आगे आके वेस पीछे हो जाती है, तो ये जो पानी आया उस मिट्टी के ऊपर, तब वहां पर सिल्ट जम जाती है, उस सॉइल को बुलाया जाता है सिल्ट. पर जब और ज्यादा गीली हो जाए और पानी वापस चला जाए, ड्रेन आउट हो जाए, तो वो जो मिट्टी का जो शेयर टाइप हुआ उसको बोलते हैं मड. उसको क्या बुलाया जाता है, मड. ओके स्टूडेंट्स, यह मैंने अभी आपको कल बताया सिल्ट. दिस इज अ वन टाइप ऑफ सॉइल. सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज लोमी सॉइल. ऑलरेडी आई इन्फॉर्म यू, लोमी सॉइल. This is a one of type of soil. So here I write to some information about loamy soil. So loam is the mixture of sand and silt. It means loamy soil एक ऐसी soil है जो mixture है किसका, sand. Sand is used in the construction. जो भी construction like अगर आपको कोई स्कूल बनाना हो
या कोई बिल्डिंग हो तो उसमें ये रेती सैंड यानी कि रेती मोस्ट ऑफ काम आती है। एंड सिल्ट ऑलरेडी मैं सिल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, सिल्ट में चिक्की मिट्टी हम जिसको बोल सकते हैं, कीचड़, कीचड़ में से जो मड बचता है वो चिक्की मिट्टी। एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द क्वालिटीज ऑफ दीज थ्री डिफरेंस, अभी इन दोनों का जो मिक्सचर है सैंड एंड सिल्ट, इट्स अ बेनिफिट फॉर द टेक्सचर, वो सॉइल का टेक्सचर में चेंज कर जाता है, यानी कि उसका जो मुलायमपन होता है स्मूथी वो चेंज हो जाता है। एयर सर्कुलेशन, उसके हवा का दबाव जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। ड्रेनेज, यस इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। आफ्टर दिस वन एक्सप्लेनेशन आई एक्सप्लेन यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज। एंड फर्टाइल, ये जो मिक्सचर है सैंड और सिल्ट का, इट मींस लोमी, ये लोमी सॉइल जमीन को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बना देती और ज्यादा उपयोगी बना सकती, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। These soils are fertile, ऑलरेडी मैं यानी कि उपजाऊ बना देती, easy to work with and provide good drainage. Again the same word drainage. Okay, so ये loamy soil, in short in the loamy soil ये मिट्टी जमीन को और क्या बना देती है, फर्टाइल बना देती है और ज्यादा उपयोगी बना देती है, उपजाऊ बना देती है, जिससे कल्टीवेशन में यानी किसी भी क्रॉप्स को उगाने में फार्मर्स को बहुत हेल्प होती है। ओके, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज? सो स्टूडेंट्स, हियर आई राइट टू टॉपिक्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सेकंड वाटर ड्रेन कैपेसिटी। इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79, they both 2 points are there on your page number 79. The capacity of the soil to hold water for the long period is known the water holding soil. ऐसी soil जो पानी को बहुत देर तक अपने पास होल्ड करके रख सके, ऐसी वाली soil को क्या बोला जाता है? Known as water holding soil. Okay, capacity of the soil. Now second, water drain. Water drain यानी कि निकाल देना, drain means निकाल देना. So the capacity of the soil to drain out water is known as water drain capacity of the soil. It means in the soil there are different types of capacity. बहुत सारी सॉइल्स ऐसी होती है जिसमें अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है, कि कोई है ना सॉइल ऐसी होती है कि वो पानी को होल्ड करके रख सकती है, कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जो पानी को इमीडिएटली निकाल देती, जैसे हमने इससे पहले लास्ट वाले पॉइंट में सीखा था कि जैसे लोमी सॉइल है, लोमी सॉइल पानी को आउट करने के लिए, ड्रेन करने के लिए वो सॉइल बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जमीन और ज्यादा क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। So students, I hope you understood today's topic. Here I am ending the chapter number 9. And if you are having doubt and query regarding a fully chapter, so you ask me during the online lecture. Thank you and have a nice day.